the study class, and then we'll continue for the today concept. And today's my agenda is waveguide dispersion. You must kindly mute. सर आई हैव वन क्वेरी सर. हाँ, tell me बेटा. सर हमारा जो अभी रिजल्ट आया सर वो भी इनकरेक्ट आया, अभी भी इनकम्प्लीट रिजल्ट है. Okay, so beta, we will talk to later in after this class, right? After this class, I will discuss your agenda. Okay, no issue. Okay. Uh, ओके सर. Once I will conclude my class, then I will discuss what are the problems related to you, and I will try my best to resolve your issue. Okay, Bitu? थैंक यू सर. Today itself, I will try. Okay, so let I start this class. एक मिनट बेटा लाइन पे रहना एक. Okay. Okay, so once again, good morning to all of you. Uh, Today we'll see the agenda regarding the dispersions phenomena. Okay, so first I will share my screen, and then we'll discuss one by one concept. Okay. So in last class, we have gone through the concept related to dispersions, how the dispersion may appeared, how many types of dispersons is there in optical fiber communication system, and the first dispersion is the material dispersion, second one is the waveguide dispersions, and third one is the combination of both, right? So first I will highlight again the previous concept, and then we will continue. So today's the waveguide dispersion is totally mathematical phenomena, right? So mathematical analysis is very important, and I have derived from basics to last conclusion of the waveguide dispersions relations. Okay, so first we will see the dispersions, how the dispersions were related with the different types of concept. And since we are able to see this, distortions in optical fibers is basically categorized into two sectors: dispersion and attenuation, right? And dispersions I already told in previous class, and that is divided into material dispersion, intermodal dispersion, intramodal dispersions, right? And attenuations is directly function of this. Attenuation is directly function of material attenuations, microbanding, and attenuation due to radiations. So this is the factor of attenuations. I will explain in details regarding the banding loss. What are the factors related with the macro banding and the micro banding loss? So no issue. We'll describe in later phase. But now today's agenda is dispersions. So second one is material attenuation is the two functions: absorption in materials and scattering. And in yesterday class, I was explained in details how the scattering can be defined and what are the function of this scattering. Okay, so material attenuations, micro bending, and attenuation due to radiation is the function of attenuations. Okay, so no issue. This is the detailed chart related to distortions in optical fiber. But now my main agenda is a dispersion. So dispersion is categorized mainly in the two parts.
इंट्रामॉडल डिस्पर्सन एंड इंटरमॉडल डिस्पर्सन. I already told intramodal matlab single mode fiber, right? And intermodal means multi-mode fiber. So we are basically currently we are looking for the material dispersons and waveguide dispersons, D materials and DWG. So material dispersons, we have already derived the relations yesterday, how the material dispersons can be overcome. If as an engineer, if anyone will ask if you want to send the information from SMBDU Katra to IIT Jammu or SMBDU to Jammu, so if somehow the material dispersion is very high, then in that case, how as an engineer you can minimize the material dispersions? Okay, so the first question is how you can minimize the material dispersion, then we'll continue the further, right? So Bimers, can you tell me how we can minimize this material dispersions? How we can minimize? Bimers, Muskan, roll number 36. Yes, sir. How we can minimize the material dispersions? So losses, correct. How we can minimize this loss? So window choose करके. Yes, कौन सा window? Second window. And at the what wavelength? So 1 to 70 के आगे जो 0 मतलब 1 to 70 नैनोमीटर या 1310 नैनोमीटर. इसके लिए आप कॉपी भी रेफर करने की जरूरत नहीं है फ्यूचर में कभी भी लाइफ में, राइट? यदि एज इंजीनियर आपने पढ़ लिया बेटा कि यदि मटेरियल डिस्पर्सन्स आ रहा है ज्यादा, बहुत ज्यादा फैक्टर में आ रहा है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हमने देखा दैट इज अ डबल डेरिवेटिव. मैंने रिलेशन कल दिखाया था, दैट इज अ डबल डेरिवेटिव, राइट? एंड डबल डेरिवेटिव का जो फंक्शन होता है डी डिस्पर्सन dTg by d लैम्डा, और मैंने देखा था माइनस d2 बीटा बाई d लैम्डा स्क्वायर. और जब वेवलेंथ के साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने कल फंक्शन देखा था, वो क्या था? यस कि एक ऐसा ना कर्वेचर की तरह होगा डबल डेरिवेटिव, एंड सो दैट कैन बी नियर अबाउट 0 at 1270 नैनोमीटर, राइट? Yes, sir. Okay. What are the impact of dispersion? Dispersion कैसे समझते हैं कि डिस्पर्सन हो रहा है किसी सिस्टम में? ग्रुप डिले बढ़ जाता है और पल्स ब्रॉडनिंग. यस पल्स ब्रॉडनिग होती है. तो ध्यान से देखना, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ पल्स ब्रॉडनिग. आज मैं एक्सप्लेन करूंगा प्रैक्टिकली हाउ. क्या करते हैं मुस्कान, हम कभी भी सिग्नल जो भेजते हैं वह 1010 के फॉर्मेट में भेजते हैं, पता है? पक्का ना? तो 1010 के बीच में भेजते हैं. क्या जब ये चैनल में जाता है तो inside the channel, is this that characteristics has been maintained inside the channel? वो यदि मेंटेन कर ले बहुत अच्छी बात है. there is no interstitial interference, there is no dispersion, there is no attenuation, is very good, fantastic. वो सिर्फ आइडियल कंडीशन में हो सकता है, बट होता क्या है अंदर में? तो डिस्पर्सन का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत अच्छा बताया, कि पल्स ब्रॉडनिंग. और पल्स ब्रॉडनिंग के कारण हमारा का इम्पैक्ट क्या होता है? तो सी हियर. तो हेयर वाई एक्सिस पे है पल्स एंड पल्स शेप्स एंड एम्पलीट्यूड, और एक्स एक्सिस पे है डिस्टेंस अलोंग द फाइबर, राइट? सो ध्यान से देखना, फर्स्ट केस में कोई सिग्नल वांट्स टू ट्रेवल फ्रॉम SMBDU टू जम्मू, राइट? एंड हियर इन दिस केस, सो यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश 101 कर सकते हैं मुस्कान? Here 1 0 1 0 1 कर सकते हैं, राइट? दूसरे में ध्यान से देखना, अब क्या हो रहा है, जब डिस्टिंग्विश पल्सेस एट टाइम t2 ग्रेटर देन t1, ये तो टाइम t1 के लिए था, अब टाइम थोड़ा सा बढ़ गया, तो मैं SMBDU से चला, डुमेल तक आया ना, डुमेल तक तो एकदम सही है, डुमेल तक एकदम सही है. बट नौरोता आते आते क्या हो रहा है सिग्नल में? नाउ ध्यान से देखना, ड्यू टू डिस्पर्सन और एटेन्यूएशंस, डिस्पर्सन की बात करूंगा अभी मैं, नाउ दे आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स ना, एटेन्यूएशन होने के कारण ये थोड़ा ऊपर शिफ्ट हो गया है. ध्यान से देखना. थर्ड केस में जब आप जम्मू पहुंचने वाले हो, बहुत नजदीक पहुंच गए हो, तो उस कंडीशंस में जो बाईपास रोड है अपना जहां पे एक हॉस्पिटल भी है बत्रा, तो वहां पे अब मैं देख रहा हूं कि अब ये देखो, यहां से यहां था,
डुमेल, डुमेल से आ गया बत्रा, बत्रा तक आते आते क्या हो रहा है, ये और शिफ्ट हो गया ऊपर, राइट। Yes, sir. और जब ये जम्मू आपके घर पे पहुंच रहा है तो ये ऐसे हो गया है, ध्यान से देखना। सो इस कंडीशन में अभी भी ये 0 1 0 1, इस कंडीशन में क्या है 0 1 0 1, यहाँ पे भी डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं थोड़ा थोड़ा 1 1, लेकिन अब ये यहाँ पे थोड़ा सा टफ दिख रहा है, मतलब कर पा रहे हैं लेकिन वेरी टफ टू डिस्टिंग्विश। यहाँ पे मे बी 0 हो सकता है और यहाँ पे 1 हो सकता है जो यहाँ था बाई चांस, बट हियर ध्यान से देखना 1 1 0 दिख रहा है क्या, 0 का आप नहीं कर रहे हैं। तो जिस पोजीशन पे यू आर एबल टू डिस्टिंग्विश, उसको बोलते हैं डिस्टिंग्विशबल फेनोमेना। लेकिन इफ द पल्स विल ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस, ये तो हम SMU टू जम्मू की बात कर रहे हैं, ऐसा लेट अस अज्यूम दैट इंडिया टू सिंगापुर भेजना है मुझे ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू, तो यू कैन ऑब्जर्व दैट कि हाउ मच द पल्स ब्रॉडनिंग विल बी देयर। ये क्या हो रहा है, अब देखो ना, पल्स पहले ये इतना ही बड़ा था, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से भी अभी भी चलो ठीक है, बट यहाँ से अब क्या हो गया, पल्स ब्रॉडनिंग कहाँ से कहाँ हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया कि नहीं हो गया। Yes, sir. तो ड्यू टू द पल्स ब्रॉडनिंग यू आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई वेयर इज अ 1 वेयर इज अ 0। एक्चुअली था 1 0 1 0, बट यहाँ पे दिख रहा है 1 1, दिख रहा है ना बेटू। Yes, sir. So this is the main disadvantage associated with the dispersion. Distinguishable phenomena बदल जा रहा है indistinguishable या non distinguishable phenomena. So गरिमा म्यूट करो तुम मुस्कान। समझ में आ रहा है कि डिस्पर्सन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है। जैसे इन कम्युनिकेशन सिस्टम में इंटर सिंबल इंटरफ्रेंस होता था, वैसे ही यहाँ पे डिस्टिंग्विशबल एंड इनडिस्टिंग्विशबल फेनोमेना अपीयर हो रहा है ड्यू टू डिस्पर्सन। तो कहाँ कहाँ पे आप देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 0 1 0 1, यहाँ पे भी लगभग 1 0 1, यहाँ पे थोड़ा सा टफ है 1 0 1 बोलना, बट यहाँ पे तो दम नहीं कर सकते आप, ये पूरा 1 1 नहीं दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा गरिमा? यस सर। सो दिस इज कौन सा फेनोमेना है ये? इनडिस्टिंग्विशबल फेनोमेना, और जिसमें डिस्टिंग्विश कर पाएंगे तो दैट इज द डिस्टिंग्विशबल, और नहीं कर पाएंगे तो इनडिस्टिंग्विशबल फेनोमेना, राइट? यस सर, यस सर। आर्यन रोल नंबर 10, आर्यन। हाँ, सो पल्स ब्रॉडनिंग का सबसे खतरनाक खेल है ये कि आपका जहां पे 0 है वहां पे भी आपको 1 दिखेगा, जहां पे भी 1 होना चाहिए था वहां पे 0 हो गया। तो आप एकदम क्लियर हो गया कंसेप्ट, डिस्पर्सन का पल्स ब्रॉडनिंग तो बोलते थे, और प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे कि कैसे हो रहा है। तो दिस इज द केस स्टडी। ओके, यस सर, यस सर। Okay, so hopefully everyone understood about the pulse broadening due to the dispersons. और किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, मुझे इंटरप्ट कर सकते हो तो मैं और डिटेल से बता दूंगा। ओके, सो नाउ आई विल कंटिन्यू। हाँ, कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे मुस्कान का मेल आया था कि मैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का जो था उसको मैंने अपलोड वो नहीं कर पाया था। जस्ट मिनट, मैं चार्जर लगा रहा हूँ। तो this is the concept related to the last class with the practical analysis. Now we will see the today's concept, right? आज का जो concept है हमारा वो है अपना related to waveguide dispersions. Okay, so waveguide dispersions कौन-कौन मुझे बता पाए, किसने थोड़ा सा भी देखा है वो मुझे बता दो। नहीं देखे हो तो मैं तो करूंगा ही, किसने किया हो तो मुझे बता दो। किसने किए हो? एनीवन जो वेवगाइड डिस्पर्शन थोड़ा सा पढ़ा हो, आज आपने पढ़ा है तो इस वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है तो आई विल एक्सप्लेन डिटेल्स। ओके, सुनो चलते हैं। आज का जो पूरा हमारा कंसेप्ट है, दो चीजें में करेंगे हम। एक तो कंसेप्ट, एक ने जो विमर्श ने बोला उसको मुझे आई एम रियली सीरियस अबाउट दैट वन कि आपका रिजल्ट, नो डाउट आप यू नो कि मेरे अंदर वो है नहीं वो सेक्शंस, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि उसको रिजॉल्व करूं मैं। ओके, सो राइट डाउन टुडेज एजेंडा इज वेवगाइड डिस्पर्शन। मैंने ऑलरेडी कम्युनिकेट कर दिया है, जो मुझे आकांक्षा ने भेजा है
जिन बच्चों का आज मैं एनी हाउ ट्राई करूंगा कि आपको मिल जाए। सो वेवगाइड डिस्पर्सन्स के लिए आप लोग लिख लें, पहला आज का एजेंडा है वेवगाइड डिस्पर्सन्स। सो वेवगाइड डिस्पर्सन इज टोटली, देखा जाए तो बेटा टोटली मैथमेटिकल एनालिसिस है, राइट, टोटली मैथमेटिकल एनालिसिस। और थोड़ा सा आपको डेरिवेशंस, डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा आना चाहिए, और आपको भी मुझे हेल्प करना है क्योंकि यू आर इन टच मैथमेटिक्स के साथ। आप मतलब बिना मैथमेटिक्स को तो समझते ही हो कि कुछ नहीं हो सकता, वैसे ही है। तो राइट डाउन मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ वेवगाइड डिस्पर्सन्स हम आज करने वाले हैं। और वेवगाइड डिस्पर्सन्स भी नंबर के साथ कैसे रिलेटेड है, कहाँ पे मिनिमम होगा, कहाँ पे मैक्सिमम होगा, तो डरना मत, पहले हम मैथमेटिक्स करेंगे, फिर मैं कंक्लूजन हमें समझना होता है। बट नो डाउट मैथमेटिक्स का जो बैकग्राउंड है दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सो राइट डाउन फॉर a given fiber alpha and numerical aperture are constant। for a given fiber, कोई फाइबर दिया हुआ है, जो कोई फाइबर दिया हुआ है उसका अल्फा एटेन्यूएशन कांस्टेंट बोलते हैं उसको, एंड न्यूमेरिकल अपर्चर आर कांस्टेंट, लिख लीजिए। एंड द V नंबर इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एंड V नंबर इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। V नंबर बहुत डिटेल से बताऊंगा। V नंबर इस बार गेट में 100% V नंबर से क्वेश्चन आएगा, मैं भी बताता हूँ। मतलब 99% से चांसेस नहीं आए, 1% तो आएगा, मतलब 1-2 साल में मेरा ये फिक्स है कि V नंबर के क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। So how the V number is proportional to frequency and other terms I will let you know, but अभी हम डिस्पर्सन्स कर रहे हैं तो थोड़े से assumption भी लेने पड़ेंगे, but V number is बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। So where V number is referred to as a normalized frequency, लिख लीजिए, where V number जो है also referred as a normalized frequency। Let us assume that there are 3 types of propagation constant, beta 1 and beta 2. Let us assume that propagation constant beta 1 and beta 2, beta 1 and beta 2, where beta lies between beta 1 and beta 2, where beta lies between beta 1 and beta 2. Okay, so we can calculate the beta. So we can calculate the beta 1 is equal to omega n1 by c, omega n1 by c, और beta 2 क्या होगा, सिंपल omega n2 by c, omega, where n1 and n2 are refractive index of medium 1 and medium 2, where n1 and n2 is the refractive index. So हमने एक assumption लिया है कि कोई फेज कांस्टेंट, प्रोपगेशन कांस्टेंट जो बीटा है, या उसको आप वो भी बोल सकते हैं बेटा, इसको यदि आप फेज के साथ यदि खेलेंगे तो फेज कांस्टेंट भी होता है। So let us assume that beta is lies between beta 1 and beta 2, where beta is equal to omega n by c। beta 1 है तो omega n1 by c हो जाएगा, beta 2 है तो omega n2 by c हो जाएगा। So this is the first conditions जो ऑलरेडी लिखा हुआ है ऊपर, ऑलरेडी आपने किया हुआ है, where beta 1 is equal to omega n by c is a propagation constant in medium having refractive index n1, and where omega n2 by c is the propagation constant in medium having refractive index n2. Now write down, नोट करके लिखना, the bound beta मतलब क्या, वो लाइज कर रहा है beta 1 beta 2, इसलिए उसको bound beta बोल रहे हैं। The bound beta is independent of the frequency of operations and the mode. The bound beta is independent from the frequency of operations, and the mode. So it will define as a normalized. So it is defined as the normalized propagation constant. नॉर्मलाइज्ड प्रोपगेशन कांस्टेंट, सिंस दोनों से इंडिपेंडेंट है तो इसको हम नॉर्मलाइज्ड प्रोपगेशन कांस्टेंट बोलते हैं, स्मॉल बी लिखना, सॉरी बीटा बोल रहा हूँ, स्मॉल बी। नॉर्मलाइज्ड प्रोपगेशन कांस्टेंट इज बी बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस फ्रॉम मोड एंड फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस। सो नाउ बी इज इक्वल टू नॉर्मलाइज्ड
प्रोपेगेशन कांस्टेंट जो b है उसका वैल्यू, ये छोड़ो, ये मत लिखो, ये लिख लो डायरेक्टली, बीटा स्क्वायर माइनस बीटा 2 स्क्वायर बाई बीटा 1 स्क्वायर माइनस बीटा 2 स्क्वायर. So normalized propagation constant b equal to बीटा स्क्वायर, बीटा मतलब बाउंडेड प्रोपेगेशन कांस्टेंट, माइनस बीटा 2 डिफेक्टिव इंडेक्स सेकंड वाला बाय बीटा 1 स्क्वायर माइनस बीटा 2 स्क्वायर. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन r. So please mark this equation as a r. Okay. Now अभी मैथमेटिक्स करेंगे, फिर मैं आपको पूरा कंक्लूजन बताऊंगा. बहुत इजी है, एक बार करने टाइम में थोड़ा सा टफ है. नाउ b, इस b को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्या फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आकांक्षा? ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, है ना. सो क्या मैं इसको लिख सकता हूं बीटा 1 स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर को बीटा 1 बीटा माइनस बीटा 2 इंटू बीटा प्लस बीटा 2 बाई बीटा माइनस बीटा 2, सॉरी यहाँ पे गलती है बेटा, बीटा 1 माइनस बीटा 2 स्क्वायर है ना, नीचे में लिखिएगा बेटा बीटा 1 माइनस बीटा 2 इंटू बीटा 1 प्लस बीटा 2, है ना, यहाँ पे गलती है, यहाँ पे लिख लीजिएगा बीटा 1 प्लस बीटा 2, राइट, यहाँ पे लिखा है सही, राइट. नाउ मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. ओके, सो मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट अस एज्यूम दैट बीटा प्लस बीटा 2 इज सिमिलर टू बीटा 1 प्लस बीटा 2. आप ये भी मान सकते हैं, इन दोनों को भी मान सकते हैं, जिसको मान सकते हैं उसको मान लीजिए. एक यदि देखा जाए तो यदि इसको मान लूंगा तो मैं दोनों कट जाएगा, लेकिन कभी भी मैथमेटिक्स हम एजम्पशन इस तरह से लेते हैं कि हमें कुछ सॉल्यूशन लेना है, ना कि उस इक्वेशन का जो एजम्पशन होता है उसको पूरा इक्वेशन खत्म कर देने के लिए होता है. सो लेट अस अज्यूम दैट बीटा प्लस बीटा 2 सिमिलर टू बीटा 1 प्लस बीटा 2. यहाँ पे खाली प्लीज चेंज कर लीजिएगा बेटू, बीटा माइनस बीटा 2 इंटू बीटा प्लस बीटा 1 2 है, यहाँ पे बीटा 1 माइनस बीटा 2 है इंटू बीटा 1 प्लस बीटा 2. सर हमने सर क्यों एज्यूम किया ऐसा? हाँ, दोनों में दूसरे कौन बोल रहे हो सर? 65 रोल नंबर. हाँ, क्या विमर्श सर विष्णु, जो भी हो. हाँ देखो, यदि आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो तोड़ के, है ना, इस दोनों को भी तोड़ लोगे तो क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, बीटा इसमें देखना, इसमें भी बीटा 1 बीटा 2 है ना बेटू, यहाँ पे भी बीटा 1 बीटा 2. हमें पता है कि बीटा जो है बाउंडेड है बीटा 1 एंड बीटा 2 के. आप चाहो तो इस इक्वेशन, बड़ी इक्वेशन को भी रिजॉल्व करोगे तो क्या होगा, एक हाईएस्ट टर्म स्टार वाला टर्म बहुत ज्यादा आएगा, तो आप एक उसको सॉल्व नहीं कर सकते, है ना. मैथमेटिक्स में क्या होता है हमेशा कि हमें उसका नेचर भी रहे और हमें रिजॉल्व भी इजी तरीके से हो. तो आप कंसीडर कर सकते हैं, या तो इसके बराबर कर सकते हैं या इसको इसके बराबर कर सकते हैं, दोनों में से आप जो भी लेंगे आप एक लेके चल सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे लिया है रिजॉल्व करने के लिए कि बीटा प्लस बीटा 2 जो है वो नियर अबाउट जो है बीटा 1 प्लस बीटा 2. क्यों लिया है बेटू, क्योंकि बीटा जो है बाउंडेड है किसके बीच में, बीटा 1 एंड बीटा 2 के बीच में, इसलिए लिया है, क्योंकि ऑल आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. चाहे तो मैं इसको भी काट दूं, रोल नंबर 65 मैं इसको भी काट दो, खत्म हो गया, हम रिजॉल्व नहीं कर पाए, है ना. सो अब आ गया हमारा फाइनल इक्वेशंस. नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी जो हमारा जो नॉर्मलाइज्ड वैल्यू था, नॉर्मलाइज्ड प्रोपेगेशन कांस्टेंट b इक्वल टू बीटा माइनस बीटा 2 ये बाय बीटा 1 माइनस बीटा 2, ये लिख लीजिए. अब इसको तोड़िए तो क्या बीटा इक्वल टू बीटा 2 प्लस b इंटू बीटा 1 माइनस बीटा 2 आया? पहले प्लीज आप लोग खुद कीजिए, मैं एक स्टेप खाया हूं यहाँ पे, उसको आपको खुद करना है. बकास, यस सर. हाँ इसको सॉल्व करो, बताओ मुझे क्या वो आया या नहीं आया. रोल नंबर 32. गुड आफ्टरनून सर. हाँ बेटू, रिजॉल्व करके बताइए कितना आया. सर इसको हमने बीटा 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया ना बी वाली टर्म को, हाँ, तो फिर बीटा 2 का यहाँ तक आ गया कि नहीं आया, यहाँ पे पहले बताओ, यहाँ पे
सर इसके बाद वाला स्टेप समझना ना, मतलब कैसे नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचे। हाँ नहीं, ये वाला आ गया क्या? पहले ये बताओ, बीटा इज इक्वल टू बीटा 2 इंटू प्लस बीटा बी। यस सर, आगे। हाँ, अब इसको अब क्या करेंगे, बीटा 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, है ना। यस। बीटा 2 कॉमन ले लीजिए। इतना डिटेल से किसी भी बुक में नहीं दिया हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा सा करवा रहा हूँ इसको। हो सकता है कहीं पे स्टेप पे कुछ गलत हो तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल इम्प्रूव दैट इक्वेशंस, क्योंकि मैंने अभी किया, मैंने जस्ट किया इसको। सो बीटा इज इक्वल टू, मैं बीटा 2 कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा 2 बाई बीटा 2 इंटू बी आ गया। ओके, नाउ अब मैं बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 2 को एक रेफरेंस प्रोपगेशन कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करूंगा। सो राइट डाउन, सिंस वी नो दैट इफ द रेफरेंस प्रोपगेशन कांस्टेंट बीटा 0, then beta is equal to n beta 0, beta 1 is n1 beta 0 and beta 2 is n2 beta 0। बहुत इजी है कि यदि मैं एक रेफरेंस बीटा 0 ले रहा हूं तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सब। 1 है तो 1 के साथ, 2 है तो 2 के साथ, रेफरेंस के साथ। सो बीटा के जगह पे हम ले सकते हैं n बीटा 0, बीटा 1 की जगह पे ले सकते हैं n1 बीटा 0 और बीटा 2 की जगह पे ले सकते हैं n2 बीटा 0। सो इसको लिख लीजिए प्लीज। दैट इज द जस्ट उसको मैंने रेफरेंस के साथ सबको एक प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूं एज अ रेफरेंस प्रोपगेशन कांस्टेंट। ओके, नाउ फ्रॉम इक्वेशन T and U, फ्रॉम इक्वेशन T and U क्या करेंगे, अब बीटा 2 की जगह पे पुट कर दीजिए n2 बीटा 0, बीटा 1 की जगह पे कर दीजिए n1 बीटा 0, पुट कर दीजिए एंड देखिए क्या वैल्यू आया। खाली यहाँ पे बीटा 2 को यहाँ पे रहने दिया है, इसको खाली बीटा 2 को रहने दीजिएगा, अंदर को तोड़ दीजिए। मैथमेटिक्स यही होता है, जो हमें चाहिए होता है उसके अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं। सो बीटा इज इक्वल टू बीटा 2 1 प्लस n1 माइनस n2 बाई n2 आया सबका इंटू बी। रोल नंबर 40। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, ये बीटा 2 इंटू 1 प्लस n1 माइनस n2 बाई n2 आएगा। यस सर। इंटू बी, और n1 माइनस n2 बाई n2 रोल नंबर 37 क्या बोलते हैं उसको? रोल नंबर 4, रोल नंबर 4, रोल नंबर 4 यार, हैं? कभी नहीं तुम लोग बोल पाते हो। अब मैं रिकॉर्ड करता हूं इस वीडियो को, मैं मतलब 90% बच्चे का नाम लेता हूं, बोलते ही नहीं हो। सर 37। हाँ बताओ अब क्या बोलते हैं इसको? n1 माइनस n2 Yes, बाई n2 को, n1 माइनस n2 बाई n2 को बोलते हैं डेल। डेल मतलब क्या होता है, क्या बताया था मैंने? डेल को क्या बोलते हैं? लिख रहे हो ना नोटबुक पे? यस सर। इसको बोलते हैं इंडेक्स डिफरेंस। डेल इज नथिंग बट द इंडेक्स डिफरेंस। चलो ठीक है, नाउ इसको म्यूट करो बेटू, वो देखो आ रहा है। सो रोल नंबर 5 अभिषेक सिंह। रोल नंबर 5 अभिषेक सिंह। नहीं बोलेगा ना कोई, ये प्रॉब्लम है इनका। रोल नंबर 31, रोल नंबर 31 बेटू। हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो बीटा इजकल टू क्या हो गया अब? बीटा 2 इंटू 1 प्लस ये डेल हो गया, तो क्या हो गया ये बी डेल हो गया। नाउ टोटल बीटा का वैल्यू होता है, लिख लो बीटा का वैल्यू अभी लिखा था पीछे, ओमेगा बाई सी, ओमेगा बाई सी इंटू n2 लिखा था यहाँ। तो नाउ पुट हियर, पुट दिस वैल्यू हियर, ओमेगा बाई सी इंटू n2 पुट कर दीजिए बेटू। बीटा का वैल्यू पुट कर दीजिए। अब मेरा बीटा का वैल्यू आ गया, तो बकास हमने ग्रुप डिले का वैल्यू कल पढ़ा था। ग्रुप डिले का वैल्यू क्या होता है?
बीटा का del differentiation of del beta by is del ओमेगा, है ना? Yes. चलिए कैलकुलेट कीजिए इसको, So वही differentiate और calculate n2 by कीजिए। c into 1 plus b delta आ जाएगा। हाँ, तो फाइनली नाउ मैंने कर दिया है सब, क्योंकि बच्चे सारे अलग अलग हैं। सो राइट डाउन, सो फाइनल TG इज इक्वल टू N2 by C। अब इसको मैंने डिफरेंशिएट कर रहा हूं, राइट, TG के जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा, दो फैक्टर है, तो U dV by d ओमेगा प्लस क्या होगा, U dV होता है ना, UV का ये फंक्शन हो तो U dV by dx प्लस और अपना V आ जाएगा बाहर, फिर dx by dy जो भी है उसका वैल्यू आ जाएगा। तो UV का फंक्शन तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा वैल्यू, TG इज इक्वल टू N2 by C 1 प्लस B डेल्टा प्लस N2 ओमेगा by C इंटू डेल बीटा बाई डेल ओमेगा। कर लीजिए प्लीज, इसको लिख लीजिए और घर पे कर लीजिएगा। मैं तो स्टेप सारे खा के सोच रहा था कि सबको स्टेप को हटा के मैं एक बार कैलकुलेट कर दूं, दैट इज द मोर मीनिंगफुल, ओके, बट नो इशू। ये आपको फिर कहीं इधर उधर मिलेगा नहीं, तो कल जाके आप एनालिसिस करना चाहें तो नहीं कर पाएंगे एनालिसिस। सो लिख लीजिए और सो दिस इज द W, मैंने पहले बताया था, स्टार्ट किया हूं इक्वेशन RSTUVW एंड, अच्छा 2 बार W आ गया, ओके, इसको Y कर लेना, राइट, या फिर नाम और दे देना कि Y आगे रखा है मैंने, सॉरी। सो VW XYZ, तो यहाँ पे आप कुछ भी ले लीजिए, X ले लीजिए। सो नाउ सिंस वी नो दैट, ये इक्वेशन लिख लो ब्रैकेट में। नाउ सिंस वी नो दैट V नंबर इक्वल टू, ये जरूर लिख लो अच्छे से, V नंबर इक्वल टू, V नंबर यदि कैलकुलेट करना हो कभी भी तो उसको कैलकुलेट करते हैं, लिख लो ओमेगा बाई C इंटू A इज द रेडियस एंड N इज द न्यूमेरिकल एपर्चर। नाउ ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या किया मैंने, ध्यान से देखना सब कोई, डेल बीटा बाई डेल ओमेगा को क्या मैं लिख सकता हूं, डेल बीटा बाई DV इंटू DV बाई डेल ओमेगा, बकास लिख सकता हूं क्या? यस सर, ब्रेक कर दिया। हाँ, क्योंकि मैं ना पार्शियली कर दिया है ना, तो DV कर जाएगा, फिर वही हो जाएगा। अब DV बाई डेल ओमेगा क्यों लाया हूं मैं, तो इसलिए लाया हूं क्योंकि V नंबर मुझे क्या है बेटू, ओमेगा बाई C इंटू A न्यूमेरिकल एपर्चर, तो मैं इसको DV बाई डेल ओमेगा कर दूंगा तो मुझे ये वाला फैक्टर मिल जाएगा, है ना बेटू, इसलिए मैं जबरदस्ती लाया हूं। तो देखो यहाँ पे भी ट्रिक है, ओमेगा बाई C A इंटू न्यूमेरिकल एपर्चर है, राइट। सो यदि मैं डेल V बाई डेल ओमेगा करूंगा तो A न्यूमेरिकल एपर्चर बाई C हो जाएगा, ओमेगा गया हवा खाने, सो A न्यूमेरिकल एपर्चर बाई C। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, A न्यूमेरिकल एपर्चर ओमेगा ऊपर भी रख रहा हूँ, ओमेगा ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया ANAW बाई C, ANAW बाई C। और इसको क्या मैं बोल रहा था अभी, क्या बोल रहा था, V नंबर, तो ये आ गया मेरा V बाई W, तो ये वाला पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा बेटा, V बाई W हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा आकाश? ध्यान से देखना, और ट्रिक है यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा देख लेते हैं, करो आराम से, यहाँ पे सबको प्लीज अच्छे से ध्यान से देखना, मुझे बहुत टाइम लग गया था इसको फिर रिजॉल्व करने में, तो आपको भी लगना चाहिए, मुझे टाइम लगेगा, आराम से देख लीजिए। यस आगे समझ में आ गया ना? आकांक्षा बेटू समझ में आया? Yes, sir. रिया, Yes, sir. रितु चौधरी, मोहसिन, यस सर। समझ में आया बेटू? यस सर। भूमिका रैना, रोल नंबर 14, दिग्विजय, Yes, sir. Yes, sir.
हाँ, सो ओके, वेरी गुड, समझ में आया। तो यहाँ पे dv बाई डब्ल्यू का vw बाई पुट कर देंगे। अब तो यहाँ पे सीधे मैं vw के यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पुट कर दिया मैंने, ये वही वाला सेम है। तो tg इक्वल टू लिख लीजिए अब यहाँ से फ्रॉम w इक्वेशन यहाँ से ये वैल्यू पुट कर दीजिए। tg प्लीज लिख लीजिए, अभी लिखना है, फोटो वोटो नहीं लेना है, फोटो बहुत पड़े हैं पूरे साइड पे। नहीं ये नहीं, डेरिवेशन नहीं पड़े हैं, ओके हाँ सॉरी, डेरिवेशन कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं भी सर्च कर लीजिए। सिर्फ गांवकर सर के लेक्चर एनपीटीएल लेक्चर नंबर आई थिंक 13 या 14 है, उसको रेफर कर लीजिएगा, सर ने डिराइव किया है। सो टीजी इक्वल टू n2 बाई सी 1 प्लस बी डेल्टा n2 बाई सी इंटू ओमेगा। अब यहाँ पे जो वैल्यू था वो मैंने v बाई डब्ल्यू पुट कर दिया, राइट, v बाई डब्ल्यू। अब इस पूरे इक्वेशन को आप लिख सकते हैं ये पूरे इक्वेशन को आप लिख सकते हैं ये। सो हमारा पूरा फाइनल इक्वेशन आ गया n2 बाई सी 1 प्लस बी डेल्टा प्लस डेल भी bv बाई dv। ये लिख लीजिए, this is the differential form, this is the differential form of all this. So फाइनल इक्वेशंस हमारा जो लाना है वेवगाइड डिस्पर्सन का, हमें पता है कि वेवगाइड डिस्पर्सन या डिस्पर्सन जो है फाइनल फैक्टर किस पे डिपेंड करता है। आपको अभी मैंने बताया था कल, एक तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक तरफ वेवलेंथ, एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ था, वाई एक्सिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। सो फाइनली जो हमारा ग्रुप डिले है वो फैक्टर है डिस्पर्सन का, और वेवगाइड डिस्पर्सन या मटेरियल डिस्पर्सन वो फंक्शन है वेवलेंथ का। सो हम क्या करेंगे, जो मैंने टीजी निकाला है उसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। सो राइट डाउन, वेवगाइड डिस्पर्सन कैन बी कैलकुलेटेड एज dTg by d lambda। dWg उसको बोलते हैं डी मटेरियल डिस्पर्सन को डी मटेरियल, और वेवगाइड डिस्पर्सन को बोलते हैं dWg। dWg इक्वल टू dTg by d lambda, राइट। सो नाउ फ्रॉम y ये वाला, अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा dWg के लिए। सो आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, फिर से प्लीज डिफरेंशिएट कर दीजिए। सो डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा dWg जो आएगा n2 डेल बाई सी इंटू डी बाई डी लेमडा bv बाई dv। जब इसको तोड़ोगे तो आपका आएगा n2 डेल बाई सी इंटू, ये डबल डिफरेंशिएशन है तो एक बार u v पे फंक्शन में टूटेगा तो d2 bv बाई dv स्क्वायर, एक बार सिर्फ यही बचेगा तो dv बाई डी लेमडा। ओके, सो नाउ हमें v इन टर्म्स ऑफ लेमडा लिखना है। v का वैल्यू क्या था, अभी हमने पहले पढ़ा था, v का वैल्यू क्या था, ओमेगा बाई सी इंटू ए इंटू न्यूमेरिकल एपर्चर। बट यहाँ पे ओमेगा है, यहाँ पे लेमडा नहीं है, तो ओमेगा को वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे ओमेगा वैल्यू पुट कर दो, ओमेगा का वैल्यू पुट कर दोगे 2 पाई बाई लेमडा कर सकते हैं, ओमेगा बाई सी को 2 पाई बाई लेमडा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो लिख दो, नहीं लिख पाएंगे तो बता देना। तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू ए इंटू न्यूमेरिकल एपर्चर आ गया। सो v इक्वल टू, अब वेवलेंथ के फॉर्म में आ गया 2 पाई बाई लेमडा इंटू ए न्यूमेरिकल एपर्चर। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे क्या आएगा, dv बाई डी लेमडा, क्योंकि मुझे dv बाई डी लेमडा कैलकुलेट करना है, dv बाई डी लेमडा, और dv लेमडा क्या आ जाएगा, माइनस 2 पाई ए बाई लेमडा स्क्वायर न्यूमेरिकल एपर्चर, माइनस 2 पाई ए बाई लेमडा स्क्वायर इंटू न्यूमेरिकल एपर्चर, क्योंकि 1 बाई लेमडा का जो हमारा डिफरेंशिएशन आएगा माइनस लेमडा स्क्वायर आएगा। अब आगे चलें, इतना वकास यहां तक कर लिया सर। हाँ बोलो बेटा। तो बहुत फास्ट हो रहा है सर। अच्छा हाँ ठीक है, एक मिनट सर एक मिनट बेटा, कहाँ तक आकांक्षा लिख चुके हो, फ्रॉम डब्ल्यू तक ठीक है। सर जब से डिस्पर्जन वेवगाइड स्टार्ट हुआ ना वहां से। कहाँ पे फिर से बताना। वेवगाइड की डिस्पर्जन का जहां से स्टार्ट किया ना, यहीं से लास्ट है ये वाला टीजी वाला। यस सर। हाँ ठीक है, हाँ तब तक आप लोग लिखो, तब तक कुछ पूछ रहे हैं
रोल नंबर 40 बोलो बेटा। सर ये जो y इक्वेशन है ना, उसमें सर आपने लिखा है n2 अपॉन c ब्रैकेट में 1 प्लस बी डेल प्लस डेल v इंटू आगे क्या लिखा है सर? 1 प्लस बी डेल के बाद एक ब्रैकेट दे दो और डेल v से पहले एक ब्रैकेट दे दो। ये डेल v वाला जो है ना, ये इसका फैक्टर है, ये पूरा इसका एक मिनट, ये इस पूरे का फैक्टर ये वाला है बेटो, ये वाला ये है ना पूरा, इसका फैक्टर ये है और ये 1 प्लस डेल ही है, ये इसका, ये यहाँ पे एक ये आएगा, एरो आएगा, यहां से भी कर लो, एरो डाल दो। ये देखो एंड, हाँ बोलो पहले बोलो, आप बोलो। सर डेल v इंटू क्या है? dv बाई dv, bv बाई dv, bv बाई bv बाई dv बेटा डिफरेंशियल फॉर्म में जब हम लिखते हैं ना लाप्लास इक्वेशन में, तो एक का फैक्टर बाहर आता है, एक का अंदर जाता है, फिर जो मल्टीप्लिकेशन, ये जो पूरा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है वो आप एक साथ लिख सकते हैं इस फैक्टर को। n2 c बाई लैम्डा है ना, tg वाला वैल्यू। यस सर। एंड मैं बताता हूँ, डेल tg इज इक्वल टू n2 बाई c 1 प्लस बी डेल्टा प्लस डेल, यहाँ पे डेल छूट गया है, नहीं यहाँ पे तो है तो है, सही है, यहाँ पे डेल लिखा है, यहाँ है, सही है बेटा। सर ये डेल उसी लाइन में सर डेल बी अपॉन डेल वी लिखा है ना, डेल बी अपॉन, ये वाला बोल रहे हो, ये तो डेल, ये डेल बीटा वाला ना, बीटा वाला, डेल बीटा अपॉन डेल वी, और ये जो लिखा था ना बेटा, यहाँ पे ध्यान से मैं बताता हूँ फिर से, ये डेल बीटा बाई डीवी था इंटू डीवी बाई डेल ओमेगा वाला था, याद है? यस सर। जब उसको तोड़ा है तो यहाँ पे इसको मैंने देखो ना, यहाँ ये डीवी बाई डेल ओमेगा वाला वैल्यू आ गया वी बाई ओमेगा, तो ये यहाँ पे पुट अप कर दिया है बेटा। सर तो नेक्स्ट लाइन में वो नहीं आना चाहिए, डेल बी अपॉन डेल वी, डेल बीटा अपॉन डेल वी, वो आगे आएगा ना, मैंने अभी यहाँ पे ये अभी किसको इसमें बोल रहा हूँ, इस वाले में, वाई, यस सर, वाई वाले में क्या बताओ, डेल बीटा अपॉन डेल वी, डेल बीटा अपॉन डेल वी। हाँ अरे देखो मैं ये वाला बोल रहे हो? यस सर। ओके एक मिनट, n2 1 प्लस बी डेल्टा हो गया, प्लस डेल वाला इधर आ गया राकेश, डेल भी बाई डेल ओमेगा भी बाई ओमेगा इधर आ गया। हाँ बोलो बेटा। सर इसमें डेल बीटा नहीं होना चाहिए, वो डेल बी होना चाहिए। हाँ डेल बी होगा, ये डेल बी अपॉन डेल वी यहाँ पर। हाँ यस ये बी है बेटा, डेल बी। सर तो नीचे में भी बी होना चाहिए, डेल बी अपॉन डेल। हाँ डेल नहीं किसमें वाई में सर, ये डेल भी इंटू डेल बीटा अपॉन डेल वी, डेल वी इंटू डेल बी अपॉन डेल वी, डेल बीटा होगा यहाँ पे सर, डेल बी वाला स्मॉल बी अपॉन डेल वी। हाँ ये यहाँ पे खाली चेंज होगा बेटा, यहाँ पे लिख लो बेटा फिर सब कोई, डेल स्मॉल बी होगा, ये स्मॉल बी बाई डेल डीवी, ये सही है। सर नीचे भी स्मॉल बी होगा ना, क्योंकि सर नेक्स्ट स्टेप में हमने n2 बाई सी कॉमन लिया है। हाँ तो है ना, डीवी ये तो छोटा में है ही बेटा। हाँ सर ये तो ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम बोलूँ, जब हमने n2 बाई सी कॉमन लिया है तो अंदर ब्रैकेट में बच गया 1 प्लस स्मॉल बी इंटू डेल्टा प्लस ये वाला n2 बाई सी बाहर आ गया, तो ओमेगा कट गया, तो बच गया डेल्टा इंटू वी इंटू डेल स्मॉल बी बाई डेल वी, स्मॉल भी ना, स्मॉल भी डेल स्मॉल बी बाई डेल वी। हाँ ये यहाँ पे आएगा डेल वी, यस सही। ये ओमकेश्वर कुछ नहीं करना है, यहाँ पे n2c कॉमन ले लो, यहाँ पे खाली dv कर दो बेटा, ये स्मॉल dv कर दो खाली, ये डेल बी। ओमकेश्वर यस सर, खाली आप इसको, ये जो बीटा है ना वो b होगा बेटा, b स्मॉल b, और बाकी जो कॉमन लो यहाँ पे जो आया वो लिखो। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ जो आया यहाँ पे सिर्फ एक गलती का कारण हो गया, यहाँ पे स्मॉल b होगा, डेल बी बाई डेल वी, ये ठीक है, डेल बाई डीवी सही है, एकदम सही है ये।
ओके, तो आगे क्या इक्वेशन क्या आया यहाँ पे? अब ये वाला y इक्वेशन को कब पुट करेंगे? तो डेल डब्ल्यू जी का जो वैल्यू है यहाँ पे चेंज करवा, यहाँ पे कर लो चेंज सब कोई, n2 डेल बाई सी इंटू डी बाई डी लेमडा, यहां तो ठीक है ना, बी वी बाई डी वी, ये सही है, ये एकदम सही है यहाँ पे। नाउ इसको डिफरेंशिएट करो जल्दी से, डी 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 टी जी डी इसके फॉर्म में ए डी टी जी बाई डी लेमडा, इसको डिफरेंशिएट करो। ये उनके सर ये क्या है? डीवी है बेटा, ये बी भी बी बाई डीवी, ओके सर। हाँ ये थोड़ा सर वो मार्कर से ना थोड़ा, हाँ मार्कर से हुआ, हाँ yes, sir, ये डीवी है। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो आएगा n2 डेल बाई सी इंटू d2 bv बाई dv स्क्वायर इंटू dv बाई डी लेमडा। यहां तक किसका किसका आ गया? और आपके लिए मैं शेयर भी करूंगा तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। हाँ आर्यन, आर्यन यस सर। हाँ यहाँ पे बेटा यहाँ तक पहुंच गए, यहाँ पे n2 डेल बाई सी इंटू डी टू, क्योंकि डबल डिफरेंशिएशन है तो कुछ नहीं लिया मैंने, एक बार भी ले लिया और एक बार भी रख लिया है ना, बाहर रख लिया। यस तो ये वाला वैल्यू आ गया यहाँ तक। अब मैंने पहली बार में क्या किया था, v इक्वल टू ओमेगा सी इंटू ए इंटू न्यूमेरिकल एपर्चर को v बाई किससे किया था याद है? dv बाई डेल ओमेगा, याद है? डेल v बाई डेल ओमेगा का कैलकुलेट किया था, बट मुझे यहाँ पे अब कैलकुलेट करना है लेमडा के लिए, तो ओमेगा बाई सी को मैंने पुट कर दिया 2 पाई बाई लेमडा। वकास यहाँ पे कोई डाउट है क्या? ओमेगा सी को बाई सी को मैंने डायरेक्टली 2 पाई बाई लेमडा पुट कर दिया। नो सर, वही बीटा का वैल्यू ही है सर, बीटा ओमेगा सी होता है 2 पाई बाई लेमडा। मुझे ये वैल्यू निकालना था इसलिए, तो डीवी बाई डी लेमडा आकांक्षा यहां तक पहुंची। यस सर। तो मैंने जबरदस्ती पुट अप किया है, जबरदस्ती मतलब कि मुझे लेमडा में फॉर्म लाना है, इसलिए मैं डीवी बाई डी लेमडा को -2 पाई बाई ए बाई लेमडा स्क्वायर इंटू न्यूमेरिकल एपर्चर, ये मेरा आ गया डीवी बाई डी लेमडा, राइट। अब मैं यहाँ पे पहुंच गया हूं, अब मैं आगे चलता हूं। अब डीवी बाई डी लेमडा के जगह पे मैं वैल्यू क्या लिख सकता हूं? -2 पाई ए न्यूमेरिकल एपर्चर बाई लेमडा, इसका वैल्यू क्या होता है? भी लिख लो। सर थोड़ा सा पीछे वाला स्लाइड, हाँ जस्ट टेक बैक। हाँ तो डीवी बाई डी लेमडा इज इक्वल टू -2 पाई ए लेमडा स्क्वायर इंटू न्यूमेरिकल एपर्चर। हो गया सर, थैंक यू। अब इसको डीवी बाई डी लेमडा आ गया इतना, तो अब डीवी बाई डी लेमडा का मैं इसको मैं वो कर रहा हूं, मैनिपुलेट कर रहा हूं बेटू। क्या मैनिपुलेट कर रहा हूं? ध्यान से देखना, -2 पाई ए इंटू न्यूमेरिकल एपर्चर बाई लेमडा इंटू 1 बाई लेमडा, है ना। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे -2 पाई बाई लेमडा स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ लेमडा इंटू लेमडा, -2 पाई ए न्यूमेरिकल एपर्चर को ऊपर ही रखा, लेमडा को एक साथ रखा इंटू 1 बाई लेमडा। देख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ इसको? यस सर। नीलकमल, यस सर। क्या मैं इसको इतना लिख सकता हूँ बेटू? -2 पाई ए इंटू न्यूमेरिकल एपर्चर बाई लेमडा इंटू 1 बाई लेमडा, क्योंकि लेमडा को मैंने थोड़ा अलग कर लिया है, क्योंकि मुझे मैं जानता हूँ कि -2 पाई ए न्यूमेरिकल एपर्चर बाई लेमडा को बोलते हैं भी। डीवी बाई डी लेमडा क्या आ गया? -v बाई लेमडा आ गया। यस सर, यस सर। तो फाइनल इक्वेशन जो हमें मिला अब वेवगाइड डिस्पर्शन का, दैट इज राइट डाउन, वेवगाइड डिस्पर्शन का फाइनल इक्वेशन इज -n2 डेल बाई सी। माइनस साइन कहां से आया है? एक साइन कहां से आ रहा है? यहाँ पे
हाँ यहाँ से ये वाला इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ वैल्यू, इस इक्वेशन में dwg का वैल्यू इसमें बस पुट कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, घबराना मत। सो वेवगाइड डिस्पर्शन इक्वल टू माइनस n2 del by c इंटू v by lambda इंटू d2 bv डबल डिविजन ऑफ bv by dv स्क्वायर। इस साल आए या अगले साल आए, कभी भी इससे क्वेश्चंस आना ही आना है, और मैं अभी अब एक्सप्लेन करूंगा। ये तो था कि कैसे पहले हम कंक्लूड करते हैं, पहले इसको इतना हैक्टिक नहीं लेना है। सो वेवगाइड डिस्पर्सन इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, मटेरियल डिस्पर्सन इज अ फंक्शन ऑफ वेवलेंथ, पक्का। सो डिस्पर्सन कभी भी लाइफ में दिखे, आप क्लियरली बोलना कि ये पक्का कुछ ना कुछ फंक्शन है वेवलेंथ का। और डिस्पर्सन से होता क्या है, देयर इज अ pulse broadening. Due to pulse broadening, distinguishable phenomena is converted into indistinguishable phenomena. तो क्या होगा, due to indistinguishable phenomena, bit error rate is increased. Why? If the signal is 1010 format, but always at the receiver end we will judge 11111. So 4 बिट में दो बार एरर आएगा, तो समझ सकते हो 50% BER is responsible in this case, right? So waveguide dispersion is really important factor to reduce the bit error rate and to enhance the bandwidth or SNR ratio. So first question is, कभी भी लाइफ में नींद में भी कोई पूछे कि डिस्पर्सन से क्या होता है, तो पल्स ब्रॉडनिंग होती है। पल्स ब्रॉडनिंग से क्या होता है, तो डिस्टिंग्विशेबल फेनोमेना जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनडिस्टिंग्विशेबल फेनोमेना, उसके कारण बिट एरर रेट बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक है भाई, आगे बताओ कि इसका फंक्शन क्या होता है। सो या ऑलवेज रिमेंबर दैट वेवगाइड डिस्पर्सन इज डायरेक्टली, लिख लो, वेवगाइड डिस्पर्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v नंबर। वेवगाइड डिस्पर्सन is directly proportional to v number, inversely proportional to wavelength. देखो इधर दिख रहा है v number wavelength. So always remember this कि अच्छा तो डेल से क्या होगा, डेल पे भी डिपेंड कर रहा है, and since we know that डेल is index difference, और इंडेक्स डिफरेंस मतलब n1 माइनस n2 का ज्यादा होना, और n1 माइनस n2 का ज्यादा होना हम जानते हैं न्यूमेरिकल अपर्चर का ज्यादा होना। तो क्वेश्चन इज न्यूमेरिकल अपर्चर कैसे इंपैक्ट करता है डिस्पर्सन को, बहुत बड़ा इंपैक्ट करता है। न्यूमेरिकल अपर्चर ज्यादा होगा, रेडियस को रेडियस ज्यादा होगा, ज्यादा लाइट आएगा, ज्यादा डिस्पर्सन होगा। ये यहाँ पे प्रूफ है, ये इज द प्रूफ कि हमारा न्यूमेरिकल अपर्चर जो है स्क्वायर रूट ऑफ n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर है, उसका डिफरेंस बढ़ेगा, हमारा वो फैक्टर बढ़ेगा, क्योंकि n1 माइनस n2 स्क्वायर कैन बी रिटन एज n1 माइनस n2 इंटू n1 प्लस n2, और n1 माइनस n2 का डिफरेंस बढ़ेगा तो हमारा वो फैक्टर बढ़ जाएगा, और न्यूमेरिकल अपर्चर बढ़ेगा तो रेडियस बढ़ जाएगा, और रेडियस बढ़ जाएगा तो हमारा वेवगाइड डिस्पर्सन भी बढ़ जाएगा। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट वेवगाइड डिस्पर्सन इज अ फंक्शन ऑफ v नंबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v नंबर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूमेरिकल अपर्चर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोर ऑफ द रेडियस, राइट। सो मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ शायद तेजी से, तो मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ शुरू से, क्योंकि मैथमेटिक्स था तो आप डरे होंगे, कुछ मतलब नहीं है, इतना चीजें कोई याद ही नहीं रखता फ्यूचर में कि क्या आपने पढ़ा। आपका सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि डिस्पर्सन जो है हमारा दो फैक्टर होता है, एक होता है मटेरियल डिस्पर्सन, एक होता है वेवगाइड। मटेरियल डिस्पर्सन का जो हमने फंक्शन देखा डबल डेरिवेटिव होता है, और दैट इज 0 होता है एट द सेकेंड विंडो एट द 1270 नैनोमीटर। बस इतना याद रखना चाहिए आपको, राइट। क्यों होता है, ड्यू टू डबल डेरिवेटिव। और अब देखो ध्यान से, ये याद नहीं रह पाएगा कभी कि 1270 नैनोमीटर पर होता है, क्यों होता है 0, ये भी कभी नहीं पता हो सकता। तो इसलिए हमने डिराइव किया था, इसलिए मैं वेवगाइड डिस्पर्सन को डिराइव कर रहा हूँ कि v नंबर के साथ कैसे डिपेंड किया, बार बार v नंबर आ रहा था तो मैं उसको कैलकुलेट कर रहा था। तो आप पता है एक लंबे जर्नी में पूरे लाइफ में बहुत चीजें होती हैं, पता नहीं कब याद रहेगा, कैसे याद रहेगा, तब जब तक कि हम उसका मैथमेटिक्स नहीं देखेंगे। सो द कॉज ऑफ दिस डिस्पर्सन इज broadening, pulse broadening, and due to the pulse broadening, distinguishable and indistinguishable phenomena is there. In analog communications, digital communications, उसको बोलते हैं aliasing. Aliasing, due to aliasing हमें interference होता है, उसके कारण सिग्नल को पकड़ नहीं पाते। In the case of dispersions, distinguishable and indistinguishable phenomena is appeared due to the pulse broadening.
जहां पे 1 मिल रहा था वहां 0 मिल रहा है, जहां पे 0 मिल रहा था वहां 1 मिल रहा है. So bit error will be high. So hopefully it will understood. This concept has been understood by all the students. Now second, ये मैंने कल के पढ़ाया था, माइनस साइन है और डबल डेरिवेटिव है, इसलिए उसका जो कर्वेचर होगा ऐसे होगा. So that's why it is 0 at the sum point and that value is 1270 nanometer. Okay. कुछ बच्चे बोल रहे थे कि बहुत तेजी से मैंने इसको वो किया है, बिकॉज तो मैं बता देता हूँ, वेवगाइड डिस्पर्सन इज अ फंक्शन ऑफ भी नंबर. वेवगाइड डिस्पर्सन द फंक्शन ऑफ भी नंबर, हमेशा याद रखिएगा. एंड इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द प्रोपगेशन कांस्टेंट. तो मैंने प्रोपगेशन कांस्टेंट लिया था और दो को के बीच में इसको बाउंड रखा था, जिससे कि मुझे डेरिवेशन में इजी हो. बस आपको डेरिवेशन में सिर्फ एक चीज याद रखना है, normalized propagation constant b is equal to beta square minus beta 2 square by beta 1 minus beta 2 square. किसी ने मुझे पूछा सर आपने इसको क्यों नहीं डिलीट किया? कर सकते हैं, कर दो डिलीट, कुछ भी आउटपुट नहीं ला सकते. तो हमेशा मैथमेटिक्स का एनालिसिस हम एजम्पशन पे इसलिए करते हैं कि कुछ मुझे आउटपुट चाहिए, और ऐसा नहीं एजम्पशन होता है कि कुछ भी एजम्पशन कर लेते हैं हम. उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हमें एक रिजल्ट की तरफ ले जाता है. तो फाइनली मुझे आया था b is equal to beta minus beta 2 by beta 1 minus beta 2. उसको मैंने तोड़ दिया और फाइनली मुझे बीटा मिल गया, बीटा 2 1 प्लस बीटा 1 माइनस बीटा 2 बाई बीटा 2. बट ये मुझे कहीं नहीं चाहिए, मुझे चाहिए इंडेक्स डिफरेंस, क्योंकि न्यूमेरिकल अपर्चर के साथ रिलेशन दिखाना था, इसलिए मैंने इसको डिफरेंस वैल्यू लिया था बीटा 0. इसको पुट करने के बाद मुझे ये डेल मिल गया था, तो बीटा 2 इंटू 1 प्लस डेल बी आ गया था, 1 प्लस डेल बी आ गया था, यहाँ आ गया था. अब मुझे बीटा आ गया. मैंने कल के क्लास में बताया था कि ग्रुप डिले कैसे कैलकुलेट करते हैं. ग्रुप डिले इज नथिंग बट द टीजी इज इक्वल टू डेल बीटा बाई डेल ओमेगा. उसको मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दिया. अब मुझे ओमेगा चाहिए नीचे, तो ओमेगा के लिए मैंने भी नंबर पुट कर दिया था, ओमेगा बाई सी इंटू ए इंटू न्यूमेरिकल एपर्चर. तो डीवी बाई डेल ओमेगा आ गया था ये, लेकिन मेरे से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, मैंने फिर से बहुत बड़ी वैल्यू हो गई थी, तो मैंने ओमेगा नीचे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये पूरा वैल्यू फिर से भी नंबर में बदल गया था, तो मैं भी बाई ओमेगा लिख दिया था और ये मेरा बहुत इजी फंक्शन बन गया था. ये सिर्फ मैं यहाँ पर भी बाई ओमेगा लिख दूंगा, वो आ गया. फिर फाइनली सबको यहाँ पे कंफ्यूजन था. सो नाउ अगेन मैं टीजी का वैल्यू पुट किया यहाँ पे, जो मैंने वैल्यू लिया था इसको अच्छे से लिख लिया. तो नो डाउट 1 प्लस बी डेल्टा, और इसको बीबी बाई बीबी डिफरेंशियल फॉर्म में मैंने पुटअप कर दिया था. फाइनली मैंने वाई इक्वेशंस को, वेवगाइड डिस्पर्सन का मुझे फॉर्मूला मालूम है, याद रखना, ये याद रखना जोड़ी है, दो ही याद रखना है. टीजी का फॉर्मूला डेल वी बाई डेल ओमेगा होता है, और वेवगाइड डिस्पर्सन का फॉर्मूला डी टीजी बाई डी लैम्डा होता है. तो टीजी का जो भी इक्वेशंस आया उसको मैंने यहाँ पे डबल फिर से डिफरेंशिएट कर दिया, तो मुझे फाइनली आया डीवी बाई डी लैम्डा. लेकिन लैम्डा का वैल्यू मुझे मालूम नहीं था, तो मैं भी नंबर को कन्वर्ट किया वेवलेंथ में, ओमेगा बाई सी इंटू ए न्यूमेरिकल एपर्चर. और मैंने आपसे पूछा क्या ओमेगा बाई सी को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई लैम्डा, तो लिख सकता हूँ. So okay, 2 pi by lambda and 2 pi by lambda into a numerical aperture is there. So अब मैं इसको डिफरेंशिएट किया तो मुझे फाइनली मिल गया dv by d lambda is equal to minus b lambda. और ये सारे इक्वेशंस को मैंने कहाँ पुट कर दिया, इस इक्वेशन में पुट कर दिया. इस इक्वेशन में मैं सारे dv by d lambda के वैल्यू मैं पुट कर दिया माइनस भी बाई लैम्डा, इसको माइनस भी लैम्डा, और ये सारे वैल्यू कन्वर्ट हो गए हमारे इसमें माइनस एन टू डेल बाई सी इंटू भी बाई लैम्डा इंटू डी टू बी बी बाई डी बी स्क्वायर. राइट. सो वेवगाइड डिस्पर्सन इक्वेशंस में भी एग्जाम में आ सकता है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, बट हमेशा के लाइफ के लिए याद रखिए, मटेरियल डिस्पर्सन हो, वेवगाइड डिस्पर्सन हो, दैट इज डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ. एंड वेवगाइड डिस्पर्सन एक और फैक्टर पे डिपेंड कर जाता है, दैट इज नोन एज भी नंबर. राइट. एंड ध्यान से देखना, यदि मेरा न्यूमेरिकल एपर्चर छोटा होगा तो को रेडियस छोटा होगा, न्यूमेरिकल एपर्चर बड़ा होगा तो को रेडियस बड़ा होगा, तो ज्यादा लाइट जाएगा, और ज्यादा न्यूमेरिकल एपर्चर बड़ा है तो डिस्पर्सन भी ज्यादा होगा. सो प्रैक्टिकली एक फाइंड लिख लो. प्रैक्टिकली एक देखा गया है, भी नंबर इज मिनिमम, जो भी नंबर का जो मिनिमम वैल्यू है 1.2 होता है एंड मैक्सिमम जो वैल्यू होता है 2.4 होता है. दैट मींस वेवगाइड डिस्पर्सन के लिए भी नंबर जो लाइज करता है 1.2 से 2.4 करता है, वो हम जब बाद में देखेंगे. दैट इज द बस एक कंक्लूजन लिखने के लिए मैं लिखा हूँ, बट इसका बाद में जब आपका एग्जाम इसके बाद हो जाएगा देन विल सी द डिटेल कॉन्सेप्ट. राइट. सो अब हमारे पास दोनों कॉन्सेप्ट है,
मटेरियल डिस्पर्सन एंड वेवगाइड डिस्पर्सन। यहाँ पे वेवगाइड डिस्पर्सन जो है वेवलेंथ के साथ डिक्रीज हो रहा है, और मटेरियल डिस्पर्सन में क्या नेचर था उसको देख लीजिए। फिर मुझे एक टास्क दे रहा हूं, सब कोई टास्क लिख लो। आपको नेक्स्ट क्लास में क्रोमेटिक डिस्पर्सन का ग्राफिकल एनालिसिस करना है। टू फाइंड द ग्राफिकल व्यू ऑन द बेसिस ऑफ वेवगाइड डिस्पर्सन एंड मटेरियल डिस्पर्सन, उसका मुझे ग्राफिकल व्यू चाहिए। जितने भी हमने पढ़े हैं क्वेश्चन अभी कॉन्सेप्ट, उसके दोनों के बेसिस पे हम देखेंगे कि क्रोमेटिक डिस्पर्सन का जो नेचर है वो क्या होगा और क्या होना चाहिए। ओके, सो if here I will conclude this today concept waveguide dispersions.